Hello everyone and a very good morning to all of you and welcome to BYJU'S Exam Prep, the most comprehensive preparation app for all exams. As we all know, from Monday to Thursday, 11 a.m. in the morning, we come up with the Hindu analysis. Today is 28th August, that is Monday, and we are here with the Hindu analysis of Monday. So if I'm audible and visible, just write in the comments, yes sir, you're audible. अगर मेरी आवाज आ रही है, so आप एक बार लिख दो comment section में, yes sir, you're audible. Okay, so this is the first page, and the first page news is talking about Manipur government plans to supply essentials to tribal district. This we'll be discussing because we have discussed few days back also news similar to that, related to that, you can say. Then here is an article. Amit Shah, Mr. Amit Shah, Home Minister of India, urges police to adopt soft stance on tribal and student unrest. Okay, so let's start with this one. Manipur government plans to supply essentials. So when we are talking about essentials, मतलब जो एकदम जरूरत के सामान है, जैसे for example basic food, basic necessity. So basic necessity में क्या है? Food के जितने भी food grains है ना, जैसे wheat हो गया, rice हो गया, दाल हो गया. Then of course clothing also is also basic necessity. फिर gas cylinder हो गया. So these are basic necessity, right? So these needs to be provided to the tribal districts where actually there are some issues reaching it and all. I'll explain it, what exactly it means. So commodities to be transported to 𝗟𝗲𝗴𝗪𝗹 through Assam and Mizoram with the help of army and other forces, as route blocked from Nagaland, blocked by 𝗞hyc groups and all. So just have an idea. Medical supplies to hill districts to be ensured through aerial route and all. Dekho. Actually, so this is explained here, but let me explain you with the help of a map. देखो ये वाली मैंने आर्टिकल बताई थी 21 अगस्त को. सो 1 वीक बैक, हाँ यस, समवन वाज राइटिंग सर एसेंशियल्स में मेडिसिन भी आ गया, करेक्ट. यस आलिया कौसर, यू आर राइट. हाँ, so actually 1 week back on 21st August I discussed this news and all. कुकी बॉर्डर imposes blockade and all. तो बहुत सारी जगह ब्लॉकेड, रास्ता रोक दिया गया है by different groups and all. Okay, so like for example NH2 was blocked. ये हम लोगों ने उस दिन डिस्कस किया था. तो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये हाईवे इधर से आता होगा, जैसे ये है ना, मान लो रोड से ऐसे ही आएगा ना, इट विल गो लाइक दिस, है ना. सो लेट्स से फॉर एग्जांपल दिस रीजन इज कॉल्ड एज चिकन नेक कॉरिडोर. आपको पता होगा चिकन नेक कॉरिडोर कहते हैं. सो ओके फाइन. सो मान लीजिए जैसे रोड से आ रहा है, ठीक है. सो लेट मी मेक इट लाइक दिस. सो फ्रॉम दीमापुर आई हैव टोल्ड यू ये नागालैंड में जगह है, ये हाईवे है विच कनेक्ट्स एक्चुअली टू यहाँ पर इम्फाल है ना. एंड देन इसके नीचे जब जाओगे तो यहाँ पे 𝗟𝗲𝗴𝗪𝗹. Okay, but these highways have been blocked. Okay, ये रास्ता जो है NH2 का है, बहुत सारी जगह पे ब्लॉक वगैरह कर दिया गया है and all. That is what it says, and that is why the government has decided to supply it through Assam and Mizoram and with the help of armed forces and all. तो ऐसे हो सकता है कुछ जाए something. मान लो देखो ये वाला आसाम है, ये वाला this one is actually, let me make it with other color. ये वाला जो है ना, this is an Assam. ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, ये आसाम का हिस्सा है. तो शायद ऐसा कुछ चला जाए. सो इंस्टेड ऑफ गोइंग विद दिस रूट मे बी ऐसे करके कुछ समथिंग प्रोवाइड किया जाए. आई एम जस्ट मेकिंग अ रफ स्केच. हो सकता है इस तरह से समथिंग लाइक दैट, और विद द हेल्प ऑफ मिजोरम, यानी ऐसे करके कुछ पहुंचाया जाए, समथिंग लाइक दैट. ओके, दैट इज व्हाई दे आर यूजिंग दिस वर्ड कि विद द हेल्प ऑफ थ्रू आसाम एंड मिजोरम. ठीक है, समझ गए? ओके, इज इट क्लियर? हाँ, तो ये जो है ना, दिस वन इज एक्चुअली द स्टेट ऑफ आसाम. ये स्टेट ऑफ आसाम है. दिस वन इज मणिपुर, दिस वन इज मिजोरम. ओके, ठीक है. तो अगर मान लीजिए ऐसे आ रहा होगा रूट से, तो इसकी जगह से ऐसे कुछ ले आ जाएगा, ऐसे या नीचे से लग ऐसे, समथिंग लाइक दैट. सो दिस जस्ट अ रफ स्केच, मतलब ये कि ऐसे ही कुछ होगा मोर और लेस. दैट इज व्हाट इट सेज. हाँ, यस, दिस एक्चुअली इज द मेन एक्चुअली वायलेंस अफेक्टेड सिटी, यू कैन से. यस, 𝗟𝗲𝗴𝗪𝗹, यस, गौरी सिटी, राइट. हाँ, ओके. तो यही NH2 वगैरह न्यूज में था कि दैट वाज गॉट ब्लॉक्ड एंड ऑल. दैट इज व्हाई इट वाज कमिंग इन द न्यूज. Now the next is Mr. Amit Shah urges police to adopt soft stance on tribal and student unrest. Unrest मतलब जैसे protest वगैरह हो गया या these other things, मतलब generally unrest word is used. So यही सब. So he actually gave a speech learned to have told 750 police officials at a conference last week and all. Okay, so organized by IB on 25th August. So just have an idea about it, है ना. So इसमें बहुत सारे डिटेल नहीं जाना है, just go and read about it, something about it. Okay. जैसे कुछ एग्जांपल्स वगैरह बता रहे हैं कि जैसे ही स्पोक अबाउट द प्रोटेस्ट emanated from the 𝗟𝗲𝗴𝗪𝗹 scheme was announced and Maharashtra Public Service Commission earlier this year.
तो जो अग्निपथ जब अनाउंस किया गया तो उस टाइम में प्रोटेस्ट हुआ था, आपको शायद याद होगा, लास्ट ईयर इट वाज वेरी मच इन द न्यूज। फिर एक महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड कुछ है। सो दीज आर द थिंग्स बीइंग टॉक्ड अबाउट हियर कि समटाइम्स these types of protest happens against exam or any other government decision and all. ठीक है, Neeraj Chopra crowned world champion. So this is an article. I hope you are aware of him. He is actually the second gold winner from India as far as Olympics is concerned. Okay, चलिए बताइए who is the first gold winner of India from India in Olympics. देखो मैंने अभी लिखा ना, हाँ। So second gold winner कौन है ओलंपिक्स में? सेकेंड गोल्ड विनर तो नीरज चोपड़ा थे 2021 में. सो ही वन टोक्यो ओलंपिक्स 2020 एंड ऑल. सो विच एक्चुअली हैपेंड इन 2021. देन यू आर सपोज्ड, आई मीन रिसेंटली एक इवेंट हुआ था, उसको कहते हैं वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप, इन विच नीरज चोपड़ा वन गोल्ड मेडल. ठीक है, 88.17 मीटर उन्होंने थ्रो किया. इसको जैवलिन थ्रो कहते हैं ना, जैवलिन थ्रो. दिस इज एक्चुअली द स्पोर्ट्स, है ना, क्योंकि हाथ में ये रॉड है ना, इसको जैवलिन कहते हैं. जैवलिन थ्रो इट्स अ स्पोर्ट्स. ठीक है, हाँ. फर्स्ट जो फर्स्ट इंडियन टू गेट गोल्ड मेडल इज मिस्टर अभिनव बिंद्रा. अभिनव बिंद्रा इन गोल्ड. ठीक है, yes. Now, so this is the question. Neeraj Chopra won gold medal at World Athletics Championship, which was held in Madrid, Lisbon, Budapest, Kyiv. कहाँ हुआ था ये बताइए. I'm waiting for the answers. और सबको लाइक बटन प्रेस कर दो. We are seeing only 12 likes, 30+ likes ले जाओ सबको, everyone फटाफट. Yes. अभी रिसेंटली जो कि आज फर्स्ट पेज में न्यूज में आया था कि नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप. तो ये कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ था? इन विच सिटी दिस वाज ऑर्गेनाइज्ड? और जो आप बता रहे ये चारों किसी न किसी कंट्री की कैपिटल है. सो प्लीज टेल मी दैट जो भी ऑप्शन आप दे रहे हो, इट इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री. यू हैव टू टेल मी द नेम ऑफ द कंट्री एज वेल. ओके, देखो अपना अपना ओपिनियन देना. ठीक है, दूसरे का कॉपी ना करना. ठीक है, जो आपको लगता है. Yes, Priya Chavan, CS study. हाँ, Pranjali, you all are right. Country का नाम बताइए. The right answer is option C, Budapest. What is the name of the country? देखो, Madrid is the capital of Spain. Lisbon is the capital of Portugal. Kyiv is the capital of Ukraine. देखो, थोड़ा सा अगर आप लॉजिक लगाते तो आप सोचते कि यार यूक्रेन में कैसे होगा, बहुत वगैरह होगी. तो next probability है. So option 4 has been removed. The Budapest is the capital of which country? I'm waiting for the answers. बताइए. Hungary. Okay. Yes. Yes, very good, Manu. Yes, Gauri said it right. So C is the right answer. Budapest is actually the capital of Hungary, where this World Athletics Championship happened. Okay, so just have an idea. The right answer is C is the right answer. Yes. देखो, here is India. Let me remove myself. Here is India. This is Europe. यहाँ पे आपको मिलेगा हंगारी. अगर आपने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा होगा, सो वर्ल्ड वॉर 1 में देयर वाज एन एम्पायर, उसको कहते हैं ऑस्ट्रो हंगारी एम्पायर. आपने नाम सुना ये? इफ यू हैव रेड वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, देन यू आर अवेयर ऑफ दिस. इट वाज अ वेरी फेमस एम्पायर, ऑस्ट्रो हंगरी एम्पायर के नाम से जानता था ना. तो ये हंगारी यहीं पे बुडापेस्ट है. ओके, यस, लेट्स मूव ऑन. ओके, सो आज शाम में आई होप यू आर अवेयर, एवरी मंडे जनरली आई डू कम अप ऑन आवर ऐप. सो डाउनलोड आवर ऐप, गो टू क्लैट सेक्शन. Today at 6 PM I will be meeting you with a revision series. इसमें revision कराते हैं. Revision of the questions that have already been asked in the Hindu analysis. ठीक है, so पुराना question के हम लोग analysis करते हैं, discuss करते हैं. So do join me. That would be very very beneficial for you at 6 PM. ठीक है? Okay. Yes. Then this is a 2024 test series. If you have not attempted it, go for it. Yes. कुछ हम लोग को शिकायत मिली है कि बच्चे attempt नहीं कर रहे mock test. Yes. So please. There's a request to all the students कि जो लोग हमारे खास के पेड बैच के स्टूडेंट है, प्लीज अटेम्प्ट द मार्क्स, है ना. अभी भी आपके पास 2-3 महीना है, सो इट विल बी वेरी मच हेल्पफुल इन गेटिंग द मार्क्स इन इम्प्रूवमेंट. सो प्लीज, देयर इज अ रिक्वेस्ट कि आजकल क्या हो रहा है कि बहुत सारे बच्चे जो है छोड़ दे रहे हैं, अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं. सो अटेम्प्ट द मार्क्स. ठीक है, एंड बहुत सारी टेंशन नहीं लेना है सर मार्क्स नीचे चला जा रहा है, उससे लर्न करो. यू विल गेट टू लर्न अ लॉट फ्रॉम दैट. ठीक है, सो यस, यू शुड अटेम्प्ट इट. एंड और 2024 का क्रैश कोर्स वी आर रनिंग द क्रैश कोर्स, और नेक्स्ट ईयर का भी 2025 के लिए आल्सो वी आर रनिंग दिस कोर्स. 380+ hours of live session, 300+ recorded videos, etc. If you have any question, call on this number 9538895678 पे कॉल कर सकते हो. Okay, let's start with this one. Editorial. Himalayan blunders that are ravaging the Himalayas. अब देखो, हिमालयन ब्लडर जो होता ना है, ये एक्चुअली फ्रेज की तरह भी यूज किया जाता है.
एक्चुअली ब्लंडर का मतलब ये होता है ह्यूज मिस्टेक, और हिमालयन ब्लंडर थोड़ा सा और एक्सैजरेट करके मतलब इट्स अ फ्रेज व्हिच इज यूज्ड कि बहुत बड़ी गलती होगी, ह्यूज मिस्टेक यू कैन से, इस तरह से फ्रेज वगैरह में भी यूज किया जाता है. अब बट हियर एक्चुअली द ऑथर इज स्पेशली रेफरिंग टू हिमालयाज आल्सो, कि हिमालय में हम लोगों ने हिमालयन ब्लंडर कर दिया. मतलब एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट, आई होप यू आर अवेयर, ये सब न्यूज़ें आजकल काफी आ रही हैं, आई होप यू आर अवेयर ऑफ दैट, कि लैंडस्लाइड्स, आपको शायद पता होगा, a lot of landslides are happening in Himachal, like there were news in Shimla, then I think in Kullu Manali also, Kullu में कुछ news था, then उत्तराखंड में भी कई बार होता रहता है, these things do happen and all. So basically these are the things, इसमें जैसे like as many as 120 people have died and all. So इसी से related उन्होंने लिखा है, Wonderstruck by the beauty and magnificence of Himalayan, ancient Sanskrit poet wrote, in 1,000 ages of the gods, I could not tell you the glories of the Himalaya. So किसी के बारे में लिखा है, कोई एक ancient Sanskrit scholar थे, उन्होंने तारीफ की थी हिमालय की ब्यूटी की and all. Okay, so that is what the author is talking about. Now the author is actually here concerned about environmental impact or environmental degradation. जो भी कह लो, impact भी कह सकते हो, in Himalayan region because of over construction etc and all, या not controlled construction. तो basically author का main जो topic है वो इसी पर बात कर रहे हैं author. Okay, now so there are two authors, one is I think a female, another is a male. So today the repeated tragedies of bridges, roads, buildings being swept by ravaging rivers, raging with गुस्सा, मतलब इस तरह से है ना, means it's actually very much angry in the sense कि इसके पास बहुत ज़्यादा water आ गया and all, that is what it means. In the hills of Uttarakhand and Himachal epitomizes a flawed digital paradigm or development paradigm institutionalized in an eco-fragile zone. Flawed मतलब क्या होता है? मतलब flawed कैसे होता है ना कि which means actually not correct है ना, या इसको कह सकते हो कि सही तरीके से नहीं डेवलपमेंट किया गया. That's called as flawed concept है ना. Now development paradigm institutionalized in an eco-fragile zone. देखो eco-fragile, fragile मतलब क्या होता है? कमजोर, नाजुक, जिसको हम लोग लिखते हैं है ना, very sensitive. Eco means एक environmentally very sensitive zone. Of course these are very sensitive zone because of course these are Himalayas and all. खैर, तो they are talking about Chamoli. Then जोशीमठ में आपने सुना होगा, जोशीमठ is a place in Uttarakhand where actually cracks developed. आपको शायद याद होगा, I think around February and all it was in the news. हाँ, flawed मतलब imperfect, yes, कह सकते हो. Okay. So now he's the author, they are actually talking about these things. मतलब वो actually they are not happy with the type of development that has happened in this region. Okay, which state is famously called as देवभूमि? Your options are Himachal Pradesh, Uttarakhand, Jammu and Kashmir, Punjab. बताइए तो. Actually author ने ये word use किया है, इसलिए मैं बता रहा हूँ. देखो ऐसे तो कॉमन सेंस से भी आंसर कर सकते हैं, जब हम लोग ये दोनों स्टेट की बात करें तो ये दोनों की प्रोबेबिलिटी कम है. So either it would be 1 or 2. ठीक है. But I hope many people are aware. Devbhumi is Uttarakhand is called as Devbhumi. So B is the right answer. Yes, Gauri, Pranjali, Zoya Khan, Priya Chavan, Manu, Nitika, Sania, you all are right. देखो today the repeated tragedies etc. ये तो बता दिया है ना. So actually here it is. Devbhumi मतलब land of gods. So it's actually famous religiously. It is very famous. आपने सुना होगा यहीं पे here you will find हरिद्वार. Then there are a lot of other places, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, बहुत सारे ऐसे religious places यहाँ पर है ना. So just have an idea about it. So एक चार धाम परियोजना भी है, ये आप जानते होंगे. चार धाम is to connect 4 famous cities, 4 big highways to connect the important religious places and all. Okay, so 2016 चार धाम महामार्ग विकास परियोजना also happened. Massive construction project happened and all. तो एक concept है double laning with paved shoulder. डबल लेनिंग का मतलब होता है कि 2 लेन की रोड हो, समझो यहाँ पर. दैट्स कॉल्ड एज डबल लेनिंग. सो DLPS एक कॉन्सेप्ट होता है, इतना डिटेल नहीं जाना है कि क्या है, बस आप इतना समझ लो कि व्हेन अ रोड इज वाइडेंड, इसमें बहुत सारे इश्यूज भी होते हैं. ठीक है, देखो एक्चुअली क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये रोड है, आप देख रहे हो ये रोड है, यहाँ से लोग आना जाना कर रहे हैं. नाउ इफ दिस, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल, इफ यू वांट टू एक्सपैंड द रोड, अगर आपको रोड चौड़ी करनी है तो पहले क्या करना होगा? बगल के पेड़ काटने होंगे. यस, सो दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज, यू हैव टू डू डिफॉरेस्टेशन. ओके, ना फॉरेस्ट का काम क्या होता है? फॉरेस्ट का बहुत सारा काम होता है. इनफैक्ट हम लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि फॉरेस्ट इतना बेनिफिशियल होता है. ट्रीज क्यों हेल्पफुल होते हैं पता है? इट बाइंड्स द सॉइल, बाइंड्स द सॉइल.
So it stops erosion, helpful in stopping लैंडस्लाइड। आपको पता है पेड़ जो होता है ना वो लैंडस्लाइड को रोकता है, क्यों? इसलिए कि वो जमीन को जकड़े रहता है। अगर पेड़ बहुत सारा रहेगा ना, सो इट विल एक्चुअली होल्ड द सॉइल। यस, हाँ, और भी चीज होता है। यस, यू आर राइट मोहम्मद अर्श, कार्बन सिंक का भी काम करता है, बहुत सारे काम होते हैं। लेकिन चूंकि हम लैंडस्लाइड के पर्सपेक्टिव में बता रहे हैं, सो लैंडस्लाइड के पर्सपेक्टिव में ये होता है कि इफ विल डू अ लॉट ऑफ डिफॉरेस्टेशन, तो अगर पेड़ उखड़ जाएगा ना तो लैंडस्लाइड आराम से हो जाएगा। ओके, यस यस यस, प्रांजलि आलिया कौसर राइट, हाँ, मानू करेक्ट, हाँ। तो फॉरेस्ट लगाना बहुत इंपॉर्टेंट था। डिफॉरेस्टेशन से, whenever you do deforestation, especially in Himalayan areas, the probability of landslides increases very much। ठीक है, एक रीजन ये भी है, और भी बहुत सारे रीजन है। ठीक है, we are not going in detail। क्यों डिफॉरेस्टेशन कब किया था? जब आपको ओवर कंस्ट्रक्शन, जैसे रोड चौड़ी करनी है, या बिल्डिंग्स बनाने हैं, हाईवेज बनाने हैं, या फॉर एग्जांपल a lot of hotels बनाना है। ठीक है, तो टूरिज्म, तो इसीलिए that is also an issue that when you are doing deforestation it affects us, है ना। So fertile topsoil भी हट जाता है when we are do a lot of projects and all। ठीक है, lakhs of trees को हटाना पड़ता है, पेड़ काटने पड़ते हैं। That is what the author is talking about। Okay, जैसा कि आपको पता है ये सब रीजन जो है, जैसे यहाँ पे ये उत्तराखंड है। So here actually the 4 very famous places है ना, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। So these are the places being connected with चार धाम यात्रा, I mean चार धाम रोड्स, है ना। उसी यात्रा को या चार धाम यात्रा कहेंगे। ओके, सो जस्ट हैव एन आइडिया अबाउट इट। नो, एक कॉन्सेप्ट होता है इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का। देखो ये लॉज के अंदर बनाया गया है, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। ओके, मतलब क्या होता है, जब भी बड़े प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं तो उसमें बहुत तरह के प्रोजेक्ट होता है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, उतना डिटेल नहीं जाना, फिर B1 B2 प्रोजेक्ट्स होता है। ठीक है, इतना आपके काम का नहीं, बट हम सिंपल लैंग्वेज में बता रहे हैं। सो इफ देयर आर बिग प्रोजेक्ट्स, कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनता है तो उसमें इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट इज मस्ट। उसमें क्या होता है, किसी थर्ड पार्टी से वेरीफाई कराया जाता है कि इन्वायरमेंट, इस अगर ये प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं, वी आर मेकिंग दिस ह्यूज रोड और ब्रिज और समथिंग लाइक दैट, स्पेशली इन इको सेंसिटिव जोन, व्हाट विल बी इट्स इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। ओके, तो जैसे फॉर एग्जांपल आप देखो, इसी को कहते हैं, इसको पढ़ लेना थोड़ा सा, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, है ना। इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, जैसे स्क्रीनिंग होता है, फिर स्कोपिंग होता है, फिर पब्लिक कंसल्टेशन होता है। ठीक है, फिर डिसीजन मेकिंग, बहुत सारी चीज होती है ना। असेसमेंट होता है, फिर लोगों से भी राय ली जाती है, उस एरिया के लोगों से, फिर डिसीजन मेकिंग होता है, फिर उसकी मॉनिटरिंग होती है कि सही से जो प्रोजेक्ट है वो बनाया गया कि नहीं। इतना आपको डिटेल नहीं जाना, बट आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए व्हाट इज एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। सो एनी प्रोजेक्ट, एनी बिग प्रोजेक्ट, हाँ, बिफोर बीइंग स्टार्टेड EIA इज डन इन दैट रीजन। तो मतलब ऑथर ये बता रहे हैं कि दे आर नॉट वेरी हैप्पी कि बहुत सारे केसेस में EIA को बाईपास कर दिया गया, ये ऐसा ऑथर लिख रहे हैं। ठीक है, सो मतलब बाईपास कर दिया गया, ठीक से EIA नहीं किया गया कई जगह। दैट इज व्हाट द ऑथर इज टॉकिंग अबाउट। They're talking about dense forests in these regions and all. ठीक है, lush green sites and all. Okay. Then भागीरथी इको सेंसिटिव जोन की बात कर रहे हैं। देखो ये जो है ना, ये सब जो रीजन है, आई होप यू आर अवेयर, ये भागीरथी रिवर है, ये वाला अलकनंदा रिवर है, बोथ मीट्स एट देव प्रयाग टू फॉर्म गंगा, है ना। तो ये सब इको सेंसिटिव जोन में आता है। तो इसमें भी वो मतलब अकॉर्डिंग टू द ऑथर दे आर नॉट वेरी हैप्पी विद आई मीन दैट काइंड ऑफ डेवलपमेंट एंड ऑल। ओके, तो ये ऑथर कह रहे हैं इसमें इतना डिटेल नहीं जाना है एक एक चीज के बारे में, उन्होंने एग्जांपल दिया है एंड दे आर सेइंग अबाउट इट एंड ऑल कि नेगेटिंग द डायरेक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड ऑल। द मैंडेटरी एंड डिटेल EIA वाज नॉट डन। तो ये बता रहे हैं कि मैंडेटरी जहाँ पे कंपलसरी EIA है वो सब नहीं हुआ कई जगह पर। सो दे आर गिविंग सम स्पेसिफिक एग्जांपल, उतना एग्जांपल्स नहीं याद रखना है, बट एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है 1996। ओके, जिसके अंदर इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट किया जाता है to find out whether there will be any impact of project, how much impact will be done, whether we should go with the project or not. ठीक है, just have an idea about it। ठीक है, और DLPS यानी कि डबल लेन बनाने वगैरह करने के लिए by widening roads and all the transport is only contradicting its own notification। तो मतलब बहुत सारी चीज बता रहे हैं, मतलब they are not happy with some of the decisions and all। ठीक है, so just have an idea about it। So they are quoting a judgment of Supreme Court of Justice Nariman, Rohinton Fali Nariman's judgment, reprimanded the ministry and directed implementation of its own notification, but later on government produced the reason of national security and finally then the Supreme Court approved it and all। देखो एक्चुअली नेशनल सिक्योरिटी का रीजन इसलिए भी दिया जाता है कि देखो दो चीजें हैं, एक ये है कि पहाड़ी एरिया में, बट दिस इज द बॉर्डरिंग एरिया विद चाइना, सो रोड्स हाईवेज कई बार इसलिए बनाई जाती है सो दैट द मिलिट्री कैन रीच टू द एक्चुअली बॉर्डरिंग रीजन। ओके, सो दैट इज वाई ये रोड जो है सिर्फ रिलीजियस पर्पस के लिए नहीं, इफ रिक्वायर्ड देन मिलिट्री पर्पस के लिए भी इट कैन बी यूज्ड फॉर स्ट्रेटेजिक रीजंस एंड ऑल।
तो अब इसमें यही इशू होता है कि अगर स्ट्रेटेजिक रीजन से रोड्स बनाना है बट एट द सेम टाइम इट इज इम्पैक्टिंग एनवायरमेंट, तो ये डिबेट्स वगैरह होता है कि वेदर वी शुड कंस्ट्रक्ट इट और नॉट, तो कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाए, दीज आर द डिबेट्स एंड ऑल. So that is what you should be knowing it. Okay. So this is what the author has talked about. One of the most challenging issues of the Ganga's rejuvenation is conservation of Gangotri glacier. Of course. तो गंगा को जब रिजुविनेट करना है यानी साफ सफाई रखना है, तो उसका सबसे बड़ा या उसको रिजुविनेट इन द सेंस एक क्लीनिंग के सेंस में भी होता है, एक उसको दोबारा जिंदा करना है, इस सेंस में भी रिजुविनेट यूज करते हैं. खैर, सो इट्स कंसिडर्ड गंगोत्री ग्लेशियर को साफ सुथरा रखना है ना. फास्ट रिसीडिंग मतलब जल्दी पिघल रहा है या उसका अमाउंट कम हो रहा है. So we have to ensure that it should not happen. Global warming की वजह से I hope you are aware the glaciers are melting fast and all. With an increase in vehicular movement and episodes of forest fires, black carbon deposits are rising on the glacier, escalating its melting and all. तो और ज्यादा pollution हो रहा है, black carbon deposits हो रहा है, जिससे और melting बढ़ रही है. ये सब आपको पता होगा बेसिक चीजें and all. That is what is being talked about. है ना. So इसी की बात करें, मतलब the authors are actually not very happy with the construction projects and all. तो ऑथर हैप्पी नहीं है उस एरिया में कि उस तरह कंस्ट्रक्शन होना चाहिए. जस्ट हैव एन आइडिया, ईआईए वगैरह थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए. है ओके. द नेक्स्ट इज टॉकिंग पीएम मोदी एंड शी जिनपिंग टू हैव सब्सटेंशियल कन्वर्सेशन ऑन टाइज. तो कभी रिसेंटली ब्रिक्स समिट हुआ इन साउथ अफ्रीका. ठीक है, तो यहाँ चाइना है, सी मीन्स चाइना आईज इंडिया. सो बोथ एक्चुअली मेट ऑन द साइड लाइन्स ऑफ ब्रिक्स समिट एंड ऑल. पीएम मोदी एंड चाइनीज शी जिनपिंग एंड ऑल. brief conversation, मतलब छोटा short conversation happened and all. ठीक है, it was an informal conversation. External Affairs Ministry released no statement on the talks. All the Foreign Secretary one quarter told reporters on August 24 that both had underlined that maintenance of peace and tranquility in the bordering areas. तो दोनों ने मतलब फॉरेन सेक्रेटरी साहब ने कहा कि दोनों ने अंडरलाइन किया है कि मेंटेनेंस होना चाहिए, पीस और ट्रैंक्विलिटी होना चाहिए एलएसी रीजन में. ओके, व्हाई एक्चुअली आपको पता होगा यहाँ पर एलएसी रीजन है. This is LAC है ना, ये सब मैंने बताया है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल. आई हैव टॉट इन द पेड क्लासेस इन डिटेल, LAC वगैरह सब पढ़ाया है ना. सो इसमें ये बता रहे हैं कि परहैप्स दिस इज द सेकंड टाइम वी मेट. देखो कहीं पे लिखा होगा, दिस एक्सचेंज इन साउथ अफ्रीका वाज द ओनली सेकंड नोन इंटरेक्शन बिटवीन द लीडर्स सिंस द स्टार्ट ऑफ LAC क्राइसिस इन 2020. LAC क्राइसिस ये किसकी बात कर रही है? जो गलवान वैली क्लैश हुआ था ना, गलवान वैली क्लैश आई थिंक जून, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जून 2020 में हुआ था ना, 14-15 जून के आसपास. ये क्वेश्चन आया भी था. हाँ, LAC की लेंथ 3488 किलोमीटर. वेरी गुड. हाँ, someone is writing. Yes. So after that there has been the second meeting. एक लास्ट ईयर हुआ था बाली G20 समिट में, when Bali in Indonesia meetings happened, and this time then the next one has happened. और अभी G20 समिट भी होने जा रहा है इंडिया में, है ना. ओके, सो दैट इज व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट. ठीक है, तो इसमें अब इसको थोड़ा सा पढ़ लेना, इसमें कुछ खास है नहीं डिटेल जानने का. जस्ट हैव एन आइडिया अबाउट इट. Okay. Relation of predictor on peace and future of relation and all, है ना. Status quo in India's patrolling rights and all. तो यही सब की बात हो रही है, इसमें कोई खास नई चीज नहीं हमको लगी, तो आप अपने से पढ़ सकते हो उसमें. ठीक है, just go and read it. Now the next is India's Rohingya refugee children are not criminals. So इस Rohingyas पे कुछ questions है. First of all, please answer this question. What is correct about Rohingyas? Your options are: they are refugee from Thailand, they are refugee from Myanmar, they are refugee from Bangladesh, they are refugee from Sri Lanka. What is the right answer? सबको लाइक बटन प्रेस कर दीजिए गाइस, एटलीस्ट 30+ लाइक्स ले जाओ. कौन से स्टेट्स में, फ्रॉम विच स्टेट का नाम कोई बता सकते हो? यस, गौरी सेठी, वेरी गुड. प्रिया चवन, जोया खान, मानो, यस. दे आर रेफ्यूजी फ्रॉम म्यांमार. विच स्टेट? उस स्टेट का नाम बताइए. यस, नितिका, आलिया कौसर. देखो, here is India, this is Myanmar. ठीक है, लेट मी रिमूव माय सेल्फ. ठीक है, यहाँ पर वेस्ट कोस्ट में ये वाला रीजन है, एक स्टेट है, स्टेट का नाम किसी ने नहीं बताया. दिस इज कॉल्ड एज राखीन स्टेट. ओके, सो दिस राखीन स्टेट इज वेरी फेमस फॉर, दिस इज द प्लेस वेयर एक्चुअली रोहिंग्यास यूज्ड टू रेसाइड, एंड बिकॉज ऑफ मिलिट्री रूल एंड ऑल दे हैव बीन परसिक्यूटेड एंड ऑल. उसके बाद फिर 1 फरवरी 2021 को एक्चुअली द मिलिट्री कू हैपेंड, सो अ लॉट ऑफ वायलेंस हैड हैपेंड एंड ऑल. उससे पहले से आई थिंक रोहिंग्या इश्यूज डेट बैक टू 2016-17. Okay, yes. Just have an idea. Yes, Pranjali, Manu, Nitika, you all right. अगर आपको पढ़ना है तो आप UNHCR की वेबसाइट में जाके थोड़ा UN रेफ्यूजी एजेंसी के बारे में जाके पढ़ सकते हो if you are interested. Since 2017 it was very much in the news. Just have an idea. So there actually this author is 𝗟𝗏𝗴𝗋𝗆 has written this article.
So she's actually giving an example of an incident in of Jammu in July and all. Refugee women and children are seen in the same space and all. Police tear gassing a small congested area and all. 5-month-old infant born to a Rohingya died in a detention and all, or holding center. So that is what she is talking about, an incident. August 25 marks 6 years because the 2017 में ये start हुआ था. So if you add 6 years, it becomes 2023. Launched a mass campaign of atrocities against Rohingyas in Rakhine state. These genocidal attacks, which began in August 2017, marked, more like 7.7 lakh Rohingyas were forced to flee and all. That is what it was in the news. So why are she's writing why are refugees being treated as criminals? इसी पर है एक आर्टिकल. अच्छा चलो एक और क्वेश्चन बताओ इसका आंसर, because we are talking about refugee and all, so you should be knowing it. UN Refugee Convention was signed in the year. Your options are 1950, 1951, 1947, 1961. What is the right answer? सबको लाइक बटन प्रेस करते जाओ everyone. Yes, we are seeing only 18 likes. 35 plus likes से जाओ कम से कम. UN Refugee Convention कब साइन हुआ था? Because we are talking about refugee. Yes, Manu, you are right. Gauri Sethi, 1951. B is the right answer to this question. Which of the following is incorrect? Your options are: Refugee Convention was signed in Geneva. India is a party to it. It's a multilateral treaty. It is built on Universal Declaration of Human Rights. Your time starts now. देखो इससे क्वेश्चन भी आया था एक बार क्या 2 बार आया कि लेट में एक बार क्लैट में. Which of the following is incorrect? Refugee Conventions related. Refugee Convention 1951 में हुआ था. इसको बताइए. Yes, Zoya Khan, Pranjali, Manu, Gauri. Yes, good. Refugee Convention was signed in Geneva. हाँ, Geneva Convention के नाम से करते. India is a party to it. No, India is not a party to it. Incorrect पूछ रहे, so B is incorrect. It is a multilateral. Multilateral means multiple nations are, multiple people or multiple actors are there. Here multiple nations are participating in it. It is built on Universal Declaration of Human Rights. ये कब साइन हुआ था? This is the question. Asked in CLAT. और Human Rights Day कब मनाया जाता है? This was asked in ALET. बताइए. दोनों का आंसर हमको बताइए. I am waiting for it. तो देखो यहाँ लिखा है UN Convention on Human Rights है ना. It is signed on the basis of Universal Declaration of Human Rights. So Geneva Convention भी कहते हैं अगर आप देखोगे गौर से. तो green ones are party and here is India. So India, Pakistan, Nepal, Bangladesh, Myanmar, Thailand, they are not party to it. ठीक है. हाँ, this year's theme, very good. You know the theme also. World Refugee Day नहीं, World Refugee Day नहीं पूछ रहा मैं. Universal Declaration of Human Rights पूछ रहा हूँ. Yes, Pranjali, Gauri, very good. हाँ, देखो, Universal Declaration of Human Rights was signed on 10th December 1948. ये एग्जैक्ट डेट पूछा था क्लैट में. ठीक है, 2021 में शायद पूछा था. और ये पूछा था कि ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है. सो ये 10 दिसंबर ये आया था एलेट में लास्ट ईयर है ना. ठीक है, सो जस्ट हैव एन आइडिया. ओके, सो द नेक्स्ट वन इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टेट्स इन स्पेस मिशन. ये इसमें बहुत डिटेल नहीं जाना है. तो ही इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट सम इवेंट्स एंड ऑल. ठीक है, कि चंद्रयान मिशन या कोई भी मिशन, अभी रिसेंटली चंद्रयान मिशन लॉन्च हुआ था, इसीलिए बता रहे हैं कि चंद्रयान 3 landed on actually the south pole of the moon and all. India became the first country. तो ये सब बात हो रही है. So he's talking about the past कि जब USSR का जो इकोनॉमी थी वो US से छोटी थी, but still it was the first spacecraft to land on the moon. So these are the examples. India's per capita income is 10% almost of USA. 10-11% है US का. But still we were the first to land, do soft landing on the south pole of the moon and all. तो यही सब बात हो रही है इसमें. अब इतना डिटेल क्या देना. फिर यूएई के स्पेस प्रोग्राम की बात करें, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की स्पेस प्रोग्राम एंड ऑल. ओके, लॉन्च होप मिशन. यूएई ने एक होप मिशन लॉन्च किया फॉर मार्स. आई होप यू आर अवेयर ऑफ दैट. सो दीस थिंग्स ही इज टॉकिंग अबाउट. हाँ, फर्स्ट ह्यूमन टू गो इन स्पेस कौन क्या होगा? फर्स्ट ह्यूमन टू गो इन स्पेस, उनका नाम बताइए. तो first human to take step on moon. स्पेस में जाने वाले फर्स्ट जो थे वो यूरी गागरिन थे. यस, गौरी, मानू, यू आर राइट. हाँ, यूरी गागरिन फ्रॉम यूएसएसआर. लेकिन फर्स्ट ह्यूमन टू टेक स्पेस ऑन मून, मून पे देने वाले कदम रखने वाले नील आर्मस्ट्रॉन्ग.
एंड ही वाज फ्रॉम यूएसए, ठीक है। अपोलो 11 मिशन का नाम था, यस। हाँ, यूरी गागरिन को कॉस्मोनॉट कहते हैं। कॉस्मोनॉट और एस्ट्रोनॉट सेम चीज होता है। कॉस्मोनॉट अगर रशिया बेचती है तो कॉस्मोनॉट वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। ओके, इंडियाज हेल्थ रिसर्च इज नॉट अलाइंड विद इट्स डिजीज बर्डन। तो ये भी एक आर्टिकल, इसमें बहुत ज्यादा पता डिटेल नहीं जाना आपको, ठीक है, सो यू कैन स्किप दिस वन। हाँ, ये पेज 10 में एक आर्टिकल थी, दिस नीड्स टू बी हाईलाइटेड। Supreme Court to hear plea on minimum distance needed between liquor shops, schools and all. Okay, now someone has filed a petition from Puducherry and all. कि देखो एक्चुअली क्या है कि जैसे मान लो ये लिकर शॉप है, सो लिकर शॉप के आसपास जो है वो कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए, जैसे स्कूल नहीं होना चाहिए, ये डिबेट होता है, या रिलीजियस प्लेस नहीं होना चाहिए। रिलीजियस प्लेस मतलब रिलीजियस वर्शिपिंग प्लेस, लेट्स से टेंपल और मॉस्क और एनी अदर प्लेस, या कुछ और चीज, लेट्स से हॉस्पिटल। ओके, क्या पास में होना चाहिए, क्या कुछ डिस्टेंस होना चाहिए कि नहीं? ओके, सो दीज आर द डिबेट्स, इट डू हैपेंस कि पास में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, लाइसेंस मिलना चाहिए, किस केस में लाइसेंस मिलना चाहिए, बिकॉज ऑफ कोर्स it cannot be given so easily, there are a lot of issues and all. So the Supreme Court actually will be hearing the matter to clear the haze मतलब confusion, haze मतलब क्या है, यहाँ पे confusion के सेंस में, on the minimum distance that liquor vendors needs to maintain from religious or educational institution in municipal areas, ठीक है, कि मिनिमम इतना 100 मीटर 200 मीटर या कुछ ऐसा लिमिट हो, कि that needs to be set up, that okay there has to be this much gap between the liquor shop and these places. Okay, then this is a question for you. ये मैंने पढ़ाया है, so I'm expecting you all to answer it. Which article of the Constitution says state shall endeavor to bring about prohibition of consumption of except for medicinal purpose intoxicating drinks and drugs which are injurious to health? Article 47, 48, 50, 51. What is the right answer? और कौन कौन स्टेट्स ने इंप्लीमेंट किया, कुछ स्टेट्स का आप नाम बता दो, so I'll be very happy. This is actually a DPSP which is advising the government, if it is possible, that ban the liquor for except for medicinal purpose. यानी अगर मेडिसिन के लिए यूज किया जा रहा तब तो ठीक है, अल्कोहल कैन बी यूज फॉर मेडिसिनल पर्पस, बट इन जनरल इट शुड बी प्रोहिबिटेड। ये कहाँ लिखा हुआ डायरेक्टिव प्रिंसिपल? आर्टिकल 47 ए इज द राइट आंसर। नहीं, गोवा में बैन नहीं है, एज फार एज माई नॉलेज कंसर्न इन गोवा इट इज अलाउड। कहाँ प्रोहिबिटेड है? हाँ, गांधीयन प्रिंसिपल यू कैन से, बट हाँ, गुजरात इज वन स्टेट, अनदर इज स्टेट ऑफ बिहार, दीज टू आर वेरी फेमस स्टेट्स। शायद एक दो और स्टेट है, ठीक है, 2-3 और स्टेट है जहां बैंड है, सो 2 तो हमको भी पता है, आप देख लेना और स्टेट्स। सो ए इज द राइट आंसर, यही है ना। इसमें और भी चीज लिखी हुई जैसे रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इंप्रूव पब्लिक हेल्थ, है ना, दैट इज टॉकिंग अबाउट दिस। ओके, so this is all about today's class guys, है ना। guys आज 6 PM पे मुलाकात होगी, so download our app, go to CLAT section, we are doing it every Monday 6 PM पे। we are doing a revision series जिसमें मैं revision करा रहा हूँ the previous old questions that is being asked in the Hindu analysis. okay, so this is all about Nagaland, शायद नागालैंड में भी आप एक बार चेक कर लेना। okay, so this is all about today's class, so please subscribe to our channel, follow us on Instagram, Facebook, Telegram, and download the BYJU'S exam prep app. Thank you everyone. Thanks for watching. Have a nice day.